We will solve example number 8.2 from the book Khurmi. In this example, an engine mechanism is shown and the crank length CB is equal to 100 mm and the connecting rod BA is equal to 300 mm and center of gravity G is at 100 mm from the point B. So we will reconstruct the same space diagram as given in the book. Okay, I am not drawing it here with the proper dimension, but I request you to draw it as per the given direction, given dimension. So here is the point A, here is the point C. From line AB, we will take 120 degree. I am taking it here approximately, and we will mark point B at 100 mm length and 120 degree angle. Fine. And then we will connect A to B, and from B we have to take point G at 100 mm as well. So somewhere over from here, let's say this is 100 mm and this is our point G. So let's focus on the given data. Our CB is here 100 mm. AB or BA is given as 300 mm. Also, the angular speed omega is given 75 radian per second, and angular acceleration, that is alpha, it is given 1200 radian per second square. Okay, and we have to find out three things. So the first is velocity of G, so velocity of point G, and angular velocity of AB, so omega AB. Second, acceleration of G, so alpha of G, and angular acceleration of AB, so alpha AB. These two things that we need to figure out from this problem. Now, in order to figure out the acceleration and velocity of AB, we must figure out the velocity of point B, and to know that, we must know that at what angular velocity this link BC is rotating. So it is given to us, since the link BC is our crankshaft, and it is said that crankshaft rotates at 75 radian per second. So which means the omega given here is omega BC, which is 75 radian per second. So according to that, the velocity of point B, or let's say VBC, is omega BC multiplied by length of the BC. So that is 75 multiplied by the length of B to C is 100 mm. We will convert that into meter. So 75 into 0.1, that is 7.5 meter per second. This will be our velocity of link BC. And as well as we have also been provided the angular acceleration of the crankshaft as well. So here alpha
BC or alpha CB. It is given as 1200 radian per second square, and as we have seen in the theory, the tangential component, that is ATBC, it is given as angular acceleration multiplied by the length of the BC or CB. So which is now again 1200 multiplied by 0.1, which is 120 meter per second square. So by these two value we will have to draw a acceleration diagram, and from this we will draw a velocity diagram to find out the velocity of AB as well as acceleration of AB. So now we will first draw the velocity diagram, and as we have discussed in previous chapter, you all know how to draw it. So just for the sake of simplicity, I am drawing it in a new page. And since we know that the AC line, so the point A here is your slider. So the AC line is a straight line, straight movement line. So the vector AC or vector CA would be a straight horizontal line, and the direction of the velocity should be from C towards A. So let's say here the C point is our fixed point. So velocity of point A will be outward direction from C towards the point A, which will be your velocity of point A. So we will represent that vector as PA. Now next what we will do, we will from the C point we will take perpendicular line. So from C we will take perpendicular line, and this perpendicular line will be with respect to the link BC. So I'll try to mimic it here, but you can draw it exactly with use of protractor. And let's say this is the perpendicular line, right? Now we know the length of B, we know the value of VB, so we know the length of VB. So let's say the VB was, I guess, 7.5, yes. So VB was 7.5. Let's say you take this scale that 1 centimeter is equal to 1 meter per second. So this length you will have to take 7.5 centimeter. So perpendicular to this line and length will be 7.5. So you will get velocity of point B, VB vector. Now from the point B we will draw a perpendicular line which will be perpendicular with respect to AB line. So from point B over here we will draw a perpendicular line like this, right? So this will be something like this, right? And the intersection will be your point A, and this vector that we just drew from point A, which is intersecting the line CA, will give us the velocity of AB. This thing we have already studied in previous chapter, but I am just repeating so that you can refer it anytime. Okay. Now we will move on to making a acceleration diagram. So in order to draw the acceleration diagram, we must be aware of two things. One of which will be that we must know the velocity of this link.
velocity of the link BC as well as the velocity of link AB, because the radial component that we need to know will be based on the velocity, because the radial component AR is given or driven by the equation v square upon the length of the link. So we must know the length of the given link as well as the velocity of the given link. So let's say if you want to find out the radial component of the link BC, then we must know the velocity of link BC and the length of link BC. Fortunately here we know the both. So 7.5 the square divided by the length, that is 0.1. So which will result in 562.5 meter per second square. Now same way, if I say I need the radial component of link AB's acceleration, so the equation will be v square AB divided by link of AB. Now we know the VB value of VB or VAB. How? Because we just drew the velocity diagram. So all you need to do is simply measure this AB length. So if you measure the length of AB, it should come around something about 4 meter per second. So the values of velocity of link AB will be 4 meter per second. So let's put that in this formula. So it will be 4 square divided by 0.3, which will be 53.3 meter per second square. So this is about radial component of link BC and link AB. Now let's move on with the drawing of acceleration diagram. Now just for the sake of simplicity, I will draw the space diagram here over again. आप लोगों को वापस से स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना हो, तो स्पेस डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम एंड एक्सेलरेशन डायग्राम एक बार ही आएंगे। ओके, बस ये सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने वापस से ड्रॉ कर दिए, ताकि बुक्स में जो स्टेप्स दिए हैं उसको अच्छे से फॉलो करके हम समझ सके कि एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनता है। राइट, चलो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली हमारा जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ही हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा। सो बेसिकली स्टार्ट हमारा सी पॉइंट से ही होगा। राइट, और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। जो वेलोसिटी डायग्राम था, वेलोसिटी डायग्राम से थोड़ा अलग है, बट काफ़ी कुछ सिमिलर वे में ही फॉलो होगा। राइट, सो लेट्स से somewhere over here is our point C. Fine. From C to A, we will draw a horizontal line simply because the A is our slider, so it will move in only one direction, and since it is moving in linear direction only, we will not have any tangential component. We will only have radial component. Correct? So from point C, we will draw a horizontal line, something like this. चलो, तो ये रहा पॉइंट C, ये कोई पॉइंट A है। अभी लेंथ की बात नहीं करते, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो इसको अभी यहाँ पे छोड़ दो। नाउ लेट्स मूव टू लाइन BC।
तो जो हमारा BC जो लाइन थी, ये लाइन तो रोटेट हो रही है, दिस लाइन इज रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन. So we will have both radial component as well as tangential component. तो अगर ये path of B रहा तो इस तरह से एक उसका tangential component होगा and as well as एक radially inward direction में भी component रहेगा. ठीक है, फॉर्चुनेटली हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी. अगर अभी अभी आपने थोड़ा वीडियो में पीछे जाके देखोगे, वी विल हैव AR AB एंड AR BC. हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. चलो, तो हम क्या करते हैं, AR BC की वैल्यू कितनी थी, 562.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम 562 का सेंटीमीटर का तो लेंथ नहीं बना सकते. सो फॉर द सिंपलिसिटी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं. दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा. तो ये 5.62, सो समथिंग अराउंड 5.63 की आपको लाइन ड्रॉ करनी है. सो 5.63 से 5.65 हो जाए, 65 हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इधर उधर चलता है. ठीक है, चलो, तो 5.62 या 5.63 की लाइन तो बना देंगे, बट डायरेक्शन कौन सी रहेगी, पैरेलल टू BC. क्यों, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है ना, रेडियल कंपोनेंट तो ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिंक ही होता है. सो स्पेस डायग्राम में जो डायरेक्शन थी सेम की सेम डायरेक्शन हमें यहाँ पे फॉलो करते हुए 5.62 की लाइन खींचनी है, कुछ इस तरह से. अब ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन रहेगी हमारी डॉटेड लाइन रहेगी. ठीक है, इस तरह से. और दूसरी चीज़, क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर जो वेलोसिटी डायग्राम था उसमें A, B और C वगैरह सब यूज़ कर लिया था. सो हियर वी विल यूज़ C डैश, A डैश एज वेल एज यहाँ पे जो होगा वो B डैश ना करते हुए B डबल डैश करते हैं. क्यों B डबल डैश, क्योंकि ये हमने सिर्फ रेडियल कंपोनेंट दिखा है. वी स्टिल डोंट हैव द फाइनल कंपोनेंट, जो बोलते हैं ना एक्सेलरेशन इमेज बोलते हैं, लास्ट टाइम थियरी में डिस्कस हुआ था, वो भी फाइंड आउट करना बाकी है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा सिर्फ रेडियल कंपोनेंट, तो उसको B डबल डैश दे दो. ठीक है, चलो, अब रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो फ्रॉम हियर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हमें ऑलरेडी पता होगी. ये भी डॉटेड रहेगी बाय द वे. चलो, तो B डबल डैश से समझ लो कि B डैश तक जाते, जो कि हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है B डैश टू B डबल डैश. तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो अभी अभी वीडियो के एकदम स्टार्ट में हमने फाइंड आउट किया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ BC, जिसकी वैल्यू 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी. ठीक है, तो 120 उसका डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 1.2 सेंटीमीटर. तो एक छोटी सी लाइन बनेगी 1.2 की. चलो, तो अगर मैं B डैश और C डैश को ज्वाइन कर दूँ, B डैश और C डैश को ज्वाइन कर दूँ, सो इट विल गिव मी द एक्सेलरेशन इमेज ऑफ लिंक BC, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A ऑफ BC से. ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इमेज ऑफ लिंक BC. ठीक है, और ये इमेज किससे बनी, एक आपका रेडियल कंपोनेंट था उससे, और एक आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट था. और यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना मत भूलना. फाइन. चल, तो BC हमारा लिंक था, उसका हमने सॉल्यूशन ला दिया. अब हम AB लिंक की बात करेंगे. तो जैसे BC लिंक रोटेट हो रही थी, सेम वे हमारी AB लिंक भी तो रोटेट हो रही है, तो उसका भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, उसका भी एक रेडियल कंपोनेंट होगा. फॉर्चुनेटली हमने AR मतलब कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ AB फाइंड आउट कर लिया था.
उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 53.3 जैसी। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है रेडियल कंपोनेंट ऑफ लिंक ए बी। कौन सा डायरेक्शन रहेगा? ऑफ कोर्स रेडियल कंपोनेंट है तो पैरेलल डायरेक्शन में रहेगा, किसके? ए बी के। तो ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिकी चीज़ क्या होने वाली है, जो हमारा स्केल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि 53.3, तो आपको बहुत ही एक्यूरेटली एक छोटा सा रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करना है इस तरह से। इसको रेंडमली कुछ x जैसा नाम दे देते हैं। और अब इस रेडियल कंपोनेंट का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाना है, जो कि होगा 90 डिग्री एंगल पे, समथिंग लाइक दिस। और वो डॉटेड लाइन को आपको एक्सटेंड करते जाना है। ताकि ये जो ए सी वाली लाइन थी और जो आपकी एक्स ए वाली लाइन है 90 डिग्री वाली, वो दोनों मैच हो जाए। सो समथिंग ओवर, जो मतलब यहाँ पे मैच हो रही है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको और इसको दोनों को एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। तो ये आपका पॉइंट हो गया ए डैश। ठीक है, सो ए डैश एक्स आपका कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल। बी डैश एक्स आपका कौन सा कंपोनेंट है? रेडियल। तो इसके बेसिस पे जो हम ए और बी डैश इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, विच विल गिव यू द एक्सेलरेशन इमेज ऑफ लिंक ए बी। ठीक है, तो ऐसे बनता है एक्सेलरेशन डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो वापस से देखना, कोई डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। चलो, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए बी मिल जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है, लिंक ऑफ जो ये ए बी वेक्टर है उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। तो अगर वो लेंथ मेजर करें तो इसके ऊपर से हमें लिंक a dash x will give us the tangential component of AB, and b dash x will give us the radial component of AB। चलो, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका जो अल्फ़ा चाहिए था ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इफ AB, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने देखा था कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ना, उसका रिलेशन क्या होता है, लिंक ऑफ द ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा ए बी क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई द लिंक ऑफ ए बी। चलो, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, यस, ये ए डैश से लेके एक्स तक आपको मेजर करना है, और उसको स्केल का जो कन्वर्जन था हमारा, उस स्केल के कन्वर्जन के हिसाब से लिख देना है। तो वो आपका समथिंग अराउंड 546 आना चाहिए। उसको डिवाइड करेंगे ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ है 300 mm, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.03, सॉरी 0.3। सो इसकी वैल्यू आई 1800 एंड समथिंग 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और सिंस वी नो द पाथ ऑफ पॉइंट बी, हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमें मिल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक ए बी।
चलो इसके अलावा हमें कुछ और भी फाइंड आउट करना था। हमें फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट जी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना था कि जो पॉइंट जी हमको गिवन है उसका कितना एक्सेलरेशन होगा। सिंपल। तो आपको वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, रेशियो लेना है। हमने जो यहाँ पे ए बी लिंक का एक्सेलरेशन फाइंड किया ना, एक मिनट, हमने जो यहाँ पे ए बी लिंक का एक्सेलरेशन फाइंड किया ना, तो उसका रिस्पेक्ट में ये जी का कितना रेशियो है, सिंपली वही फाइंड करना है। तो जैसे हमने ए बी लिंक के बीच में जी पॉइंट रखा था, सेम वेज हम क्या करेंगे, जो हमारा ए डैश से बी डैश वाला जो लिंक है उसका सेम वेज रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या था, बी से कुछ 100 mm लिया था। ठीक है, तो वही स्केल के हिसाब से हम बी से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो समझ लो बी डैश से 1 सेंटीमीटर लेके हम यहाँ कहीं पे आए और हमारा पॉइंट मिला हमें जी डैश। तो हमें अगर जी डैश की वैल्यू चाहिए, अगर हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए, सो वी विल सिंपली हैव टू कनेक्ट दिस 2 पॉइंट। तो सी डैश और जी डैश को हम कनेक्ट कर लेंगे। सो आफ्टर कनेक्टिंग सी डैश जी डैश, यू विल सिंपली हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ सी डैश जी डैश। तो सी डैश जी डैश की लेंथ मेजर करोगे, विच विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट जी, और वो आपका आना चाहिए 414 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। जैसा यहाँ पे रेशियो था, सेम वे वी विल हैव टू टेक द रेशियो ओवर हियर। So from point B dash we will take 1 centimeter, since 1 centimeter is 100 meter per second square. Okay, and from G dash to C dash जो हमारी लाइन होगी, which will give us the acceleration of point G. So that we will simply measure using the scale. Then we will convert according to our conversion, our scaling, and from that we can tell that AG is 414 meter per second square. So these are your 2 answers that were required for the acceleration और velocity के लिए। ये हमारे 2 आंसर्स थे यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ए बी क्या होगी। सो वो हम मेजर करेंगे, बी ए बी विल बी 4 मीटर पर सेकंड। यस, एज वेल एज वी हमें फाइंड आउट करना था ओमेगा ऑफ ए बी एज वेल, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी भी फाइंड आउट करना था। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। ओमेगा ऑफ ए बी इज वी ए बी अपॉन लिंक ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। सो ये था 4 मीटर पर सेकंड, उसकी लेंथ हो गई 0.3, तो ये आपका आ गया 13.3 रेडियन पर सेकंड। द की थिंग हियर इज, अगर आपने सही वेलोसिटी डायग्राम बना दिया और अगर आपने सही एक्सेलरेशन डायग्राम बना दिया, rest of the things are easy for you. So please go through the entire lecture. If there is any doubt, please let me know. Thank you.